Hello students, today we are going to discuss our new topic, electric capacitance. Electric capacitance. In capacitor chapter, first topic is electric capacitance of a conductor. Electric capacitance of the conductor. तो कैपेसिटेंस है क्या और कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर जो है एक प्रकार की युक्ति है जो क्या करती है, चार्ज को होल्ड करती है, चार्ज को स्टोर करती है। और कैपेसिटेंस जो है किसी भी चार्ज की, किसी भी बॉडी को चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी है। दैट मीन्स कैपेसिटर is a system and capacitance is the capacity of body to store charge. It's clear? Capacity of body to hold charge or store charge is known as capacitance, and capacitor is a system which stores the charge, and capacitance is capacity to store the charge. Suppose here is a conductor. Suppose a conductor, when you give a charge or conductor store the charge, the capacitance of the conductor is when a charge given to a conductor, then the potential developed. That means charge Q given to the conductor is directly proportional to potential developed across the conductor. Here Q is equal to C into V, where C is a constant known as कैपेसिटेंस। ये क्या है? कैपेसिटेंस है। Q इक्वल टू सी वी। क्यू चार्ज किसी बॉडी को देंगे तो पोटेंशियल डेवलप होगा जो कि चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसके लिए टू Q इक्वल टू सी वी। सी एक कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट को हम क्या करते हैं? कहते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस आती कंडक्टर। तो इसके लिए टू कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई V हो गया। अब यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज इक्वल टू यूनिट ऑफ चार्ज अपॉन यूनिट ऑफ potential. That means coulomb per volt. coulomb per volt हुआ। और इसकी डायमेंशन जो होगी डायमेंशन के लिए डायमेंशन ऑफ चार्ज अपॉन डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल, या इसी को मेंशन कर सकते हैं डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस C इक्वल टू
कूलॉम अपॉन पोटेंशियल के लिए हम लिख सकते हैं जूल पर कूलॉम, दैट मीन्स कूलॉम स्क्वायर अपॉन जूल। कूलॉम की डायमेंशन जो होगी AT होल टू द पावर 2 एंड जूल की L स्क्वायर T टू द पावर -2। अब इस सबको ऊपर करें तो हो जाएगा m की पावर -1, L की पावर -2, T टू द पावर 4 एंड A टू द पावर 2। ये हुई डायमेंशन ऑफ द कैपेसिटेंस। यूनिट कूलॉम पर वोल्ट एंड डायमेंशन इज m टू द पावर -1, L टू द पावर -2, T टू द पावर 4 एंड A टू द पावर 2। Here, for the unit coulomb per volt is also known as farad. That means coulomb per volt is known as farad. That means 1 farad is equal to 1 coulomb per volt, or 1 coulomb per volt is equal to 1 farad. After this, capacitance are the isolated charge sphere placed in the electric field. Capacitance of an isolated spherical conductor. Capacitance of isolated spherical conductor. Suppose a spherical conductor having radius A, placed in vacuum, and Q charge is given to the conductor, then charge all over the conductor is spread over the conductor, and here Q charge plus Q charge is concentrated at the center, and its surface is plus Q charge. इस चार्ज के ड्यू टू जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस स्फेरिकल सरफेस के परपेंडिकुलर अवे होगी। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के ड्यू टू जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है चार्ज से अवे होती है। उस कंडीशन में अगर हम पोटेंशियल को फाइंड आउट करते हैं, किसको? पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q on the surface of the sphere. Potential due to charge Q on the surface of conductor. Potential due to charge Q on the surface of the conductor. V is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q divided by A. In case of all the charge concentrated at the center, and this distance
of the surface from the charges A. So potential V is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q divided by A. We know that C is equal to Q upon V. Here capacitance C is equal to Q upon V. That means you may define the capacitance of the capacitor as the ratio of the charge given to the conductor to the potential developed at the conductor. That means you may define ये क्या है, कैपेसिटेंस जो है एक रेशियो है जो क्या दिया गया चार्ज है जो कंडक्टर को उससे जो उससे पोटेंशियल डेवलप किया है उससे. दैट मीन्स कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चार्ज गिवन टू द कंडक्टर टू द पोटेंशियल डेवलप ऑन द कंडक्टर. सो C is equal to Q divided by V. In place of V, we can write 1 by 4 pi epsilon naught Q by A. 1 by 4 pi epsilon naught Q divided by A. Is be equal to C is equal to C is equal to 4 pi epsilon naught A Q divided by Q. Q cancel by Q is being equal to 4 pi epsilon naught into A. That means capacitance of the spherical capacitor being equal to the A times of 4 pi epsilon A into A. ये वैल्यू हो गई कैपेसिटेंस की. स्फेरिकल कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होगा उसके लिए ये फॉर्मूला आपको मिल गया. अब इसके बाद आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये टोटल वैल्यू जो है कांस्टेंट है, तो आप ये कह सकते हैं कि C is directly proportional to A. That the capacitance of the spherical conductor is directly proportional to the radius of the conductor. That means radius जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा उसका कैपेसिटेंस होगा, रेडियस जितनी कम होगी उतना ही उसका कम क्या होगा, कैपेसिटेंस होगा. अब इसके बाद इस फॉर्मूले से C is equal to 4 pi epsilon naught into A. परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स हम मेंशन कर सकते हैं C डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू A. ड्यू टू दिस यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू यूनिट ऑफ द कैपेसिटेंस फैराडे पर मीटर. ये हो गई उसकी यूनिट. और इसकी डायमेंशन जो होगी फैराडे की डायमेंशन जो है m की पावर माइनस l टू द पावर माइनस 2 t टू द पावर 4 एंड a टू द पावर 2 ये है. और फैराडे की मीटर की ये वैल्यू. दैट मीन्स इसकी डायमेंशन हो जाएगी m की पावर माइनस n l टू द पावर माइनस 3 t टू द पावर 4 a टू द पावर 2. ये डायमेंशन हो गई. आफ्टर दिस आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज कंडक्टर. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज कंडक्टर. जब किसी भी चार्ज को हम क्या करते हैं, किसी भी पोटेंशियल एनर्जी
of the charge conductor. कोई भी चार्ज कंडक्टर है उसकी पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए सपोज कीजिए कोई कंडक्टर है, सपोज a conductor given charge q and random potential is then the potential V is equal to q divided by c. ये पोटेंशियल के लिए q बाय c रीच क्यों, क्योंकि c इज इक्वल टू या q इज इक्वल टू c इंटू v, इसके ड्यू टू v इज इक्वल टू q अपॉन c हो जाएगा। तो वर्क डन इन चार्ज, वर्क डन टू चार्ज द कंडक्टर इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कंडक्टर। work done in charge the conductor is equal to work done in charge the conductor is stored as potential energy of the charge of conductor. That means अगर स्मॉल चार्ज है, अगर पोटेंशियल उसको इनफाइनाइट से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आते हैं तो उसके ड्यू टू वर्क डन W इक्वल टू V इंटू डेल्टा Q होगा। जो डेल्टा Q है वो स्मॉल चार्ज जब उसको चार्ज किया जा रहा है तो उसके द्वारा स्टोर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी या वर्क डन जो होगा वो क्या होगा, V इंटू डेल्टा Q के इक्वल होगा। V इंटू डेल्टा Q के इक्वल होगा। तो इन प्लेस ऑफ V हम मेंशन कर सकते हैं Q डिवाइडेड बाई C इंटू डी Q। दैट मीन्स वर्क डन इन नेटवर्क डन when charge given to conductor is 0 to Q, 0 to Q. That means W is equal to integration of from this Q by C into dt. It's being 1 by C 0 to Q Q dQ. It's being 1 by C 1 by 2 Q to the power 2. लोअर लिमिट फ्रॉम 0 टू Q, ये वैल्यू होगी 1 बाई C 1 बाई 2 Q स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 0 स्क्वायर, दैट मीन्स 1 बाई 2 Q स्क्वायर अपॉन C, सॉरी Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इन प्लेस ऑफ Q you may write C into V, that means W is equal to 1 by 2 C V square upon C, Q is equal to C into V. It's been half C V square. That means work done is equal to the potential energy is equal to 1 by 2 C into
V²। ये आपका फार्मूला हो गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज कंडक्टर के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।